how different is the risk taking when you compare it with between army professional or somebody like yourself versus an entrepreneur के लिए risk में there is a downside, but when you talk about army, risk is your life, there is no downside to it, right? वो तो डाउनसाइड तो मर ही जाओगे। हाँ वो तो how do you see this? ओके, क्या फर्क है दोनों में, दोनों रिस्क में? you have yourself said the answer. Mhm. In army or in special forces, when you are taking a risk, अगर गलती हो गई तो खत्म। तो बंदा गया हाँ, ना, he is gone. हाउ डू यू, वो क्या दिमाग है? इसको तो आप डेली सोचते होगे ना, सुबह उठ रहे हो, अगर आप ऑप्स में हो, लेट्स से। It becomes part of your life. I अच्छा, will tell you. हाँ, Once you are standing on the ramp, अच्छा एक और भी मिसनॉमर है कि jumping is a great thing. Jumping is the most easiest thing to do in world. जंपिंग एज इन जंपिंग Jumping from the aircraft. अच्छा, ओके People take hawa out of it. Like yesterday also I was studying. ओके So when I did my para basic course in 2003, so I came back after clearing my probation. तो we were special forces. तब para commando होते थे, तब special forces नहीं होते थे. हाँ जी, तो हम खड़े हो गए रैंप पे, हमारा पैरा बेसिक कोर्स चला, आगरा में चलता है. हाँ, सो वी वर देयर. सो जिस स्टिक में मैं खड़ा था, मैं बिकॉज ऑफिसर्स जनरली स्टैंड इन फ्रंट, वी आर द लीडर्स, सो दे हैव टू जंप फर्स्ट, दैट इज द नॉर्म. सो आई वाज स्टैंडिंग. जो मेरे ऑपोजिट स्टिक थी, दे वर यंग गर्ल्स ऑफ एनसीसी जंपिंग विद मी. तो आई थॉट कि यार ये बच्चे भी, यानी कि you must NCC वाले. see NCC. I'm not degrading anyone. हाँ, They were NCC's girl cadets. They were jumping with us. मैं सोचा यार हम स्पेशल फोर्सेस ऐसी, यानी कि क्या है ये, यानी people thinking jumping off an aircraft is a great thing. It is just, when it comes to a person like me, it is just a mode of insertion. Whether you go on foot or you jump from aircraft or you go underwater. Even if you jump and you don't reach your designated area, you are a failure. तो वो तो एक mode of insertion हुआ ना. So the real task starts once you have landed on ground and you move towards the target. So jumping is just the fun part of it. You reach, navigate, पहुंच गए. Oh, for civilians it is a big thing. But if you ask me, there's nothing great in jumping. What is great in jumping? There is nothing. It is Everything, gravity, unless and until you are a free faller जिसमें तुम्हें maneuvers करने हैं, it is fascinating. it is gravity and parachute will do the duty. You have to be bit aware कि हाँ थोड़ी अपनी drill वो ठीक कर लेना कि अगर बच्चों जैसे मेरा वो खुला नहीं था कि ऊपर देख लेना कि वो नीचे ही ना स्पीड में आ रहा हो, तो अपनी रिजर्व डिप्लॉय कर देना. उतना तुम्हें दिमाग रखना है. Again, it is just jumping. 80-year-old people in our reunions, 80-year-old They jump. officers, they jump from an aircraft. I'm telling you, this is truth. They come, they have 1960s में सर्व करते थे. हमारे जो वेटरन्स थे 1971 की वॉर में थे, वो 2020-19 में आकर जंप कर रहे हैं. अबे जब वो बंदे जब, so jumping is not a great thing. Okay. Your question was कि Downside of the risk. downside of the risk. रिस्क कैसे मतलब दिमाग कैसे एब्जॉर्व करता है इस रिस्क को कि देयर इज नो डाउनसाइड, देयर इज माय रिस्क इज माय लाइफ इज गॉन. Yeah. That is what risk is in army. I will tell you. So when you are downrange or you are in operational area, every day you are going out. Maybe twice a day, coming back, depending upon आप किस टाइप का ऑपरेशन कर रहे हो. So what I used to practice and most majority of the men used to be practicing is how to रूम के अंदर घुसे, आपने एम्बुश लगाया, आपने कुछ भी किसी भी टाइप का ऑपरेशन किया, आर यू डूइंग अ कॉर्डन, कुछ भी कर रहे हो, रूम, इट इज मसल मेमोरी व्हेन यू आर डूइंग दैट थिंग. यस, ओके, ये होगा, यू आर रिहर्सिंग 1000 कंटिजेंसीज. ठीक है. सो once your mind is totally involved in the यानी intricacies, यानी जो minutest details हैं ऑपरेशन की, अगर आपका पूरा माइंड उसके अंदर लगा हुआ है ना, डेथ doesn't play a role.
You don't have time to think about death. Like I got hit by a grenade. हाँ अब मुझे लगा कि मुझे वो जल रहा है अंदर. अब मेरे को ये नहीं मालूम है कि मेरे को गोली लगी है, because blood is boiling, that guy is militant is firing, you are firing. तो तुम्हें पता नहीं लग रहा है कि चोट तो लगी है, but your faculties are engaging the target. So it becomes a secondary thing. So similarly, when you go inside, you're doing it, checking a room in closed corners in कश्मीर के घरों में, तो आपका पूरा ध्यान उधर है. The moment something action happens or something sees, you engage that thing. Death, no death, is only till the time once you go through it. And अगर आप मेरे जैसे बच के आ गए, तो फिर तुम्हारा दिल और खुल जाएगा. यानी कि you are, अच्छा ठीक है, हो सकता था. Once you go back and debrief happens, अबे यार ये तो गलती हो गई थी ना, चलो बच गए. अगली बार में इसको इनकॉर्पोरेट करने की. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट थिंग कि जब आपके सेटबैक फेलियर्स होते हैं, तो उससे डेटा लो. ये रोना नहीं कि मर गया, बच गया, पैसे डूब, वो तो दैट इज व्हाट कावर्ड्स डू. दैट इज व्हाट लो परफॉर्मेंस डू. हाई परफॉर्मेंस पीपल डोंट. अच्छा मैंने ये देखा, अच्छा तो मैं इधर गिरा, कि यानी मेरे को अपना the feedback mechanism should Yeah. So when a militant fired on me, I need to see next time जो मेरी आड़ है, जो मेरा कवर है, whether I should have engaged moving out with the right, or I do ambidextrous, or I shoot him over here, or those are the datas which we need to get. And similarly goes with civil life. और गोली लग गई, मैं मर गया, इधर से ग्रेज हो गया, इधर कट गई, उंगली टूट गई, हाथ, वो सब चीजें तो यानी उस पे सोचकर मल करके वो तुम बच गए ना, वो तो तुम निकल गया तुम्हारे से. लेकिन ये चीज देख लो कि तुम नेक्स्ट टाइम अपना शू कैसे पैक करोगे, अपना सेकेंडरी आर्म किधर रखोगे, अपना हाउ विल यू कीप योर मैगजीन्स, वेयर विल बी योर फर्स्ट फील्ड ड्रेसिंग, वेयर विल बी योर IFAC, वो सब सेट कर लो. बिकॉज हर ऑपरेशन वो सिखाता है. अच्छा मैंने इधर हाथ दिया, अरे यार ये था नहीं, मेरी रेडियो सेट की बैटरी नहीं थी, उसका एंटीना निकला होता, वो आंख पे लग गया, तो इसको सीज कर लेता हूँ. दीज आर द थिंग्स यू नीड टू टेक एज डाटा. लाइफ डेथ, वो तो जो मर जाता है वो ही जस्ट डाइज. correct. Unless and until it's a death which is elongated, कि चोट लगी हुई है, लॉस ऑफ ब्लड, फिर so very clean and categorically लाइफ एंड डेथ तो आप कंट्रोल करते ही नहीं हो. बट इससे भागते हैं लोग, बट आप नहीं भागे, आप उसके साथ यू वर प्लेइंग विद बिकॉज इट वाज पार्ट एंड पार्सल ऑफ मी ना. यानी कि मैंने जब You've been trained when I volunteered for this kind of stuff, हाँ तो मुझे मालूम था कि ये तो बैगेज है ना मेरे साथ, या तो ये तो मेरे को मिलेगा ही, जिसको कहते हैं विरासत में, हाँ ये चीज तो ये तो मिलेगी. मिलेगी ना. बड़ी अजीब चीज है लेना ना. मतलब कोई मेरे को ये बोले कि यार मैं हाँ, ये कि मैं हाँ, लाइफ एंड डेथ से डरता नहीं हूँ, और मुझे फियर हैज टू बी देयर. फियर मैनेजमेंट कैसे करते हो आप? फियर मैनेजमेंट एंड फियर एक्सेप्टेंस इज टू डिफरेंट थिंग्स. करेक्ट. फियर को एक्सेप्ट, तो यानी ये तो मुझे मालूम ही है कि मैं जहाज से कूद रहा हूँ, अगर एक नहीं खुला तो मैं मरूंगा, वह चोट लगेगी. हाँ बट दैट इज हाउ यू डू इट. बट व्हेन यू आर ऑन द रैम्प, वो जो मैं बता रहा था, रैम्प पे खड़े हो गए, उस टाइम पे मैं ये थोड़ी सोचूंगा कि नीचे गिर गया, टांग टूट जाएगी, रुक जाएगा. व्हाई नेगेटिव थॉट्स? प्री दैट नथिंग. यू जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग कि मैं ये, मेरा ये रिजर्व इधर है, ये इधर है, पीछे वाले ने चेक कर लिया, 1000 2000 वो गिनती होती थी हमारी. नीचे करके ऊपर देखूंगा, खुल गया पैराशूट, नीचे आ गया, जब ग्राउंड आने लगेगा तो पैरा पोजीशन सख्त बना लूंगा. ये दैट्स ऑल यू डू. उतना टाइम ही नहीं है. देर तो नीचे जाकर फिर देन यू तो स्टार्ट. ये सारे रहती नहीं है चीजें फियर जैसी. मैं उनकी एक बात सुन रहा था, अजीत डोभाल साहब की. वो कहीं सेमिनार ले रहे थे, व्हेन ही वाज सेइंग कि 3 तरीके के लोग होते हैं. डर सबको लगता है, एक को लगता है पहले, एक को लगता है बीच में, एक को लगता है बाद में, आफ्टर द इवेंट. मैं बाद वाला हूँ, मैं पहले के इवेंट हो जाते हैं उसके बाद. तीनों टाइम पे कभी डर नहीं लगता है. अच्छा, आई एम फियरलेस. तो वो चौथे तरह के भी आते चौथा होता है, आई डोंट नो अबाउट. Okay. he is national security advisor. I don't know what Mr. Doval has to say. I have never met him. I respect him for his rank and whatever he is, but fear does not have space in my scheme of things. Is it? Prior, before, अरे मेरे लिए मिशन अकम्प्लिशमेंट इंपॉर्टेंट है. When I do even a boot camp, or in civil But also, किसी I चीज से start तो आपको with डर लगता होगा लाइफ में, किसी चीज से.
not looking after the pride of my unit going. Hmm. My actions जिससे 7 पैरा स्पेशल फोर्सेस का नाम खराब होगा, उससे मुझे डर लगता है. The close group guy whom I have to look after, and if I will be in future, maybe my family, maybe very good close friends, maybe the A team which I have, Hmm. उनको मैं प्रोवाइड कर पाऊंगा कि नहीं, विल आई बी एबल टू लुक आफ्टर देम, उस चीज से डर. ये फेलियर सक्सेस की मैं लूट जाऊंगा, उनको खोने का. उनको खोने का डर नहीं है, बिकॉज Okay. they are in service, they are doing their job, they have to do it. Once you are out, there is no, I have no fear of losing life. You understanding that I'm saying, but I fear कि कुछ ऐसा, when I was in service, कुछ ऐसा एक्शन ना हो जाए कि अपनी इज्जत यानी यूनिट की इज्जत उस पे, उसका फियर, उसका डर रहता था. नॉट कि Life चली ऑपरेशन में जाएगी. जा रहे हैं, जंप कर रहे हैं, अंदर घुस रहे हैं, पहले क्या करेंगे. उन तीनों टाइमों में कोई डर नहीं था. यू आर डूइंग देयर अ जॉब. You must understand, your mindset has to be crystal clear. And if you have done adequate combat military related operations, वो डर वर निकल जाता है. You do have anxiousness कि अंदर क्या होगा, but you control it and you go inside with the best of your ability कि मैं देखूंगा. It is not that fear it is still making you move na. Right. So it is okay. Hmm. If you want to call it fear or your alertness or whatever it is, but ये नहीं है कि अंदर का घुसट रहा फायर. Those things happen. Those things have happened. We have escaped. And ज्यादा दिल इंसान का तब खुल जाता है जब वो बच के आ जाता है.